الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق जनाब के जैसी कोई जनाब नहीं। I would humbly request to the respectable principal, Sir Iftikhar Ali, to please come on the stage and have few words. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसिन मिल्लत अल्लामा शेख मोहसिन नजफ़ी साहब, हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा शेख मोहम्मद हसन जाफरी, सीनियर मिनिस्टर हाजी अकबर तावान साहब, ब्रिगेडियर बशारत हुसैन साहब, हाजी फिदा मोहम्मद नाशाद स्पीकर, मेहमानान गिरामी, मोहतरम वालिदैन, असातिज़े इकराम और अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप तमाम का उसवा एजुकेशन सिस्टम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने अपनी इंतहाई मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं मुख्तसरन सिस्टम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 1994 में स्टार्ट हुआ था उसवा एजुकेशन सिस्टम। आज अल्लाह के फजल करम से 25 साल हम मुकम्मल कर रहे हैं। उसवा एजुकेशन सिस्टम जाबिर बिन हयान ट्रस्ट, जिसकी मैनेजिंग ट्रस्टी अल्लामा शेख मोहसिन नजफ़ी साहब है, उसका एक पोर्शन है, एक पार्ट है। मुख्तलिफ इस ट्रस्ट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें एजुकेशन, हेल्थ, अब्दुल्ला हस्पताल आपके सामने है, और पावर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम भी है जो मदीना कॉलोनी के नाम आप सब जानते हैं। इसके अलावा डिज़ास्टर्स में हुसैनी फाउंडेशन, जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी 2005 के ज़िलज़िले के बाद हज़ारों की तादाद में जो सैलाब के ज़द में आए थे जिनके मकानात, उनके हज़ारों की तादाद में शेख साहब की सरपरस्ती में उनको घर बनाते हैं हुसैनी फाउंडेशन। ये भी इसी ट्रस्ट का एक पार्ट है। तो इसमें सबसे जो अहम और सबसे बड़ा हिस्सा एजुकेशन का है। इस उसवा एजुकेशन सिस्टम तकरीबन 70 इदारों पर पूरे पाकिस्तान में 70 के इदारों के करीब है। उसमें डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, कैडेट कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल, इसमें से 3 टोटल यहाँ पे 14 इधर बल्तिस्तान सबसे बड़ा रीजन है। इसमें 3 बड़े इंटर कॉलेज करदू सिटी में है, 2 सिटी में है, एक हल्का नंबर 2 में, और 2 हाई स्कूल है। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, बताने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं एक दफ़ा आप सबका, बेखुसूस मेहमानों का, वालिदैन का, और जो दूर दराज से आए हैं बल्तिस्तान के वैली से, आप तमाम को एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। The most beneficent, His Excellency, respectable President, Honorable Chief Guest, distinguished guests, teachers and students, Assalamu alaikum. It's an honor for me to speak to you today on this auspicious day. The topic I have chosen for speech is "Change is always better." This slogan must not be new for you all. The current government is the champion of introducing tabdili in our country. There are 2 kinds of change. One, a person expects from other, and another, that is self-actualization, which is very rare, therefore problems occur. A philosopher and literary figure says, everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. The real problem arises when a person bothers about other people and expects them to go through change, while he considers himself perfect. Respectable audience, a student who considers himself perfect doesn't look forward to changing himself. He doesn't raise question and doesn't devote himself for doing something extraordinary. If we look back to human history, things have been changed from time to time. Everything has been evolved and revolutionized. This is the natural law. The world in which our ancestors lived was devoid of scientific advancement. Thus they lived a very simple life. It could take years for them to perform Hajj or go somewhere for business purposes. There was starvation, famine, diseases, wars and ignorance. Because of responding and welcoming
been changed dramatically. Now we can have round of the world in days, and man has started planning to settle on any other planet in our solar system. It's what the benefit of the desire and urge for change. The British propounded system of education discourages creativity, which is a plain conspiracy against the people of third world countries. It's very unfortunate that our educational institutions are not ready for change and produce just degree holders who are productive. As a result, we are still failed to export on a small scientific device in international market. Therefore, in our case, change is a must. And the one who is an embodiment, a living example, who has translated the dream of Tabdili into reality is none other than Allama Sheikh Mohsin Ali Najfi. I pray that may you be taken as a role of model by everybody in Pakistan. Ameen. Thank you. मेरी पहचान पाकिस्तान कि जिसमें सरसब्ज खेत, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बरखाती नदियां और बहते दरियाओं की लहरें, इसके मैदान और इसके समंदर और समंदरों की गहराइयां, फूल ऐसे कि जैसे जन्नत की हूरें, इसकी मिट्टी और मिट्टी के अंदर दफन खजाने शहीदों के खून से महकती है यही मिट्टी, इसका जर्रा जर्रा यही कहता है मैंने दिल से मांगा पाकिस्तान, मैंने दिल से मांगा पाकिस्तान। जनाब सदर, इसकी खाक में पित्रोस की पहनाइयां, लाला और गुल की लब कुशाइयां, फक्र और ख्याल की फलक पैमाइयां और शम्स और कमर की रानाइयां हैं। इसमें सुल्तान की पुका खून और सर सैयद अहमद की निगाहों का फसूल है। जनाब सदर, इसकी बड़े दीवार हमें इसलिए प्यारे हैं क्योंकि इसके हुसूल के लिए खाक व खून की दास्तान लिखी गई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, और हम अय्याम को लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कसलकुन। अपो काका फोनो चल यचू। मुझे यहाँ आके बहुत खुशी महसूस हो रही है। आज शेख मोहसिन नजफी साहब के हवाले से, उसवा पब्लिक स्कूल के हवाले से, मदीना कॉलोनी के हवाले से, अब्दुल्ला हॉस्पिटल के हवाले से और जितनी इनकी खिदमात हैं उसके हवाले से मुझे पहले से इल्म था। और जो इनके साथ से मुलाकात ना हुई, उसवा पब्लिक स्कूल पे हिस्सा मौजूद ना आ सका, लेकिन इनसे गायबाना तारफ़ जिस तरह उन्हें हमारा था इसी तरह हमें भी उनका था। तो शेख मोहसिन नजफी साहब और उनकी पूरी टीम को हम पूरी कौम की तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं। उनके तमाम वो फरमा रहे थे हमारे मेहमान अजीज़ जनरल एहसान महमूद खान, FCNA कमांडर। इस वक्त मेहमान गिरामी हमारे अल्लामा शेख मोहम्मद हसन जाफरी से मुसाफा करते हुए और साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के VC और मोहसिन मल्लक अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफी साहब से मज़ा गुफ्तगू है।
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على نبي والميامين من آله मैं एक ही बात आपके खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि वो ये है कि तालीम तो दुरुस्त है, इंसान की इंसानियत से मजबूत है। तालीम इंसान को इंसान बनाता ज़रूर है, लेकिन इससे अहम बात यह है कि तालीम को हासिल करने वाला इंसान होता है। इंसान तालीम हासिल करता है, ये बात तो मालूम है ना। तालीम से इंसान इंसान बनता है, ये सबको पता है, लेकिन इंसान तालीम हासिल करता है। मैं इस बात से एक बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि तालीम के शऊर के सिलसिले में इंसानी शऊर के जैसे उरूज के ऊपर फाइज है हमारे गिरगिट बल्तिस्तान के अवाम। मैं उसके कदर नहीं कर सकता, उसकी मिसाल शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलती। मैं ज़्यादा समा खराशी नहीं करूँगा। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे उसवा तालीम के इब्तिदाई ईंट रखने में हमारी मदद जिन हज़रात ने की है। तालीमी कमेटी के अफराद में से कुछ मरहूम हो गए, कुछ लोग इस वक्त जिंदा सलामत हैं और बहुत कम चेहरे नज़र आते हैं यहाँ। ये चेहरे इतने मानूस है, मैं इन चेहरों से जितना मैं बहुत उसवा से मानूस नहीं हूँ। इन चेहरों ने इसकी बुनियाद डाली, दिन रात मेहनत की, इस काम को शुरू किया और इस तरह के आबियारी उन लोगों ने किया। हम तो पीछे गए उजरे में बेसर व सामानी है। हमने उस वक्त सिस्टम को शुरू किया, लेकिन नहायत बेसर व सामानी है। हमारे एक टीम होनी चाहिए और बुनियादी चीज़ ये है इसमें जो सबसे पहले रखी पे है मुजरी है या रहनुमा है या क़ियादत है, जो भी आप कह सकते हैं। ये चीज़ें, तीन चीज़ें अगर फराहम न हो, आप देखेंगे, मुताला करें तारीख में, इनमें से तीनों चीज़ें न हों, ये तीन अनासिर अगर न हों या इनमें से एक न हो, तो वो प्रोग्राम, वो मिशन, वो पैगाम, वो जो किसी मिल्लत के लिए पेश किया जाता है, वो नाकाम है। असवा एजुकेशन सिस्टम बिलाशुबा न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि ममलिकत अजीज़ के गोशे गोशे में गरीब और नादार बच्चों को घर की दहलीज पर मियाली तालीम मुहैया कर रहा है। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो यहाँ के बुनियादी वसाइल से महरूम अवाम के लिए इंतहाई मुनासिब फीस में आला तालीम का हुसूल एक ख्वाब ही रह जाता, मगर ये मौसिन मिल्लत अल्लामा शेख मोहसिन नजफ़ी की दूरअंदेशी और वसत नज़री थी कि उन्होंने एक ऐसा इदारा बनाया जहाँ तालीम सब के लिए के नज़रे के तहत इल्म की शम्मा सबके लिए रोशन है। डिफरेंट एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रस्ट कराची के मेम्बरान गिलगित बल्तिस्तान में म्यारी तालीम के लिए पिछले 9-10 सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए और मोहसिनन का भी शुक्रिया अदा करना तभी समझता हूँ।
नहीं